Good morning, students. Today we'll start about our next type of welding, arc welding. As in the previous lectures, we have discussed that it is a type of fusion welding. So, fusion welding, as far as the definition of this arc welding is concerned, it is defined as type of fusion welding in which an electric arc is set up. Electric arc is set up between the metal electrode or welding rod and the workpiece. So there are two elements, metal or welding electrode and the workpiece. Now it is also defined as a welding process in which fusion or coalescence is produced by heating with an arc or arcs with or without the application of pressure and with or without the use of filler material. So in every type of welding we have to bring these two elements, electrode and the workpiece, to the plastic stage, or you can say fusion state, and then if we are using the external pressure, it is known as a pressure welding, and if we are not using any external pressure and just we are using the addition of filler material by melting it in the gaps, then it is known as a fusion welding. We have already discussed. As far as the temperature is concerned, in case of a arc welding, we are creating approximately 3500 to 4000 degree centigrade. 3500 से 4000 degree centigrade temperature is produced near the crater of the arc, and this temperature is sufficient enough to melt the metal and metal electrode or welding rod. Now second definition is, now what is electric arc? Electric arc किसे बोलते हैं? So electric arc is a continuous stream of electrons, flowing through some sort of medium between two conductors of an electric circuit, and which is accompanied by intense heat generation, very high heat generation and radiations. So this is called an electric arc. We will see some figure to understand more precisely. Now electric arc can be produced in the following ways. Say first is, so basically we have two elements, workpiece and electrode. Okay. Now electric arc is to be produced at the tip of the electrode and the workpiece surface. So electric arc जो है हमारी it can be produced between a consumable electrodes, means जो consume होगा during welding, and the workpiece. Second case may be between a non-consumable electrode like carbon, graphite or tungsten and the workpiece, जो कि consume नहीं होगा. Third is between two non-consumable electrodes, कि दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं नॉन कंज्यूमेबल हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस कर रही हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द method used, we are naming these welding processes. And the most common electric arc welding is the one in which the arc is struck between an electrode and the workpiece. This is called a direct arc. And if the arc is struck between two non-consumable electrodes,
it is called independent arc. So arc is of two types, direct arc and independent. तो डायरेक्ट वो होगी जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस के बीच में है, और इनडायरेक्ट वो है जो दो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स के बीच में है. नाउ एज फार एज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग processes is concerned, so we have a list in front of us. Now first one is shielded metal arc welding. Shielded means covered or shielded metal arc welding. Second one is carbon arc welding, submerged arc welding, TIG welding, tungsten inert gas welding. I am repeating, this is very important, tungsten inert gas welding. And next one is MIG welding, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग. फुल फॉर्म की कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल पेपर में. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिग. सो टिग इज टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग इज मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, आर्क स्पोट वेल्डिंग, स्टड आर्क वेल्डिंग. So these are the some types of arc welding processes. So this is the arc welding setup diagram in front of you. Here is the generator and two elements, workpiece and electrode. Electrode is held in the electrode holder, and a line diagram shows the circuit between the generator and the electrode and the workpiece. It is very simple diagram to understand this, how we are doing this arc welding. And this black one is the arc which is struck between the tip of the electrode and the workpiece surface. Now next topic is principle of operation of arc welding, means how we are doing this arc welding. Now first of all, to start the arc welding, very first process in any type of welding is preparation of edges of the workpiece. मीन्स जिस वर्क पीस को हमें वेल्डिंग करनी है उसे प्रॉपरली पहले प्रिपेयर किया जाता है वेल्डिंग के लिए. हाउ वी आर डूइंग इट. सबसे पहले जिस एजेस या वर्क पीस के एंड्स को वेल्ड करना है उनको हम पहले प्रॉपरली क्लीन करते हैं ताकि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा अनवांटेड मटेरियल ना चिपका हो. लाइक वी हैव टू रिमूव ऑल द स्केल्स, डस्ट, rust, paint, grease or any other foreign material cleared from the edges where we want to do the welding. Okay. Now क्यों करते हैं, साफ क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो जॉइंट है वेल्डिंग करने के बाद हमारा वेल्डिंग जॉइंट जो है वो होमोजीनियस एंड स्ट्रॉन्ग वेल्ड बने, स्ट्रॉन्ग जॉइंट बने और होमोजीनियस हो उसकी प्रॉपर्टी. साफ करने के बाद, प्रॉपरली क्लीन करने के बाद हम उनको क्या करते हैं, वर्क पीसीस को प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं. किस एंगल पे या किस पोजीशन में उनको वेल्डिंग करना है, तो इसके लिए हमारे पास हम फिक्सचर्स रहते हैं या वर्किंग टेबल है, उसके ऊपर प्रॉपरली पोजीशन रख कर ओके प्रॉपर अर्थिंग करके उनको रखते हैं. और वी ऑल्सो कीप सम स्पेस फॉर एक्सपेंशन एज एक्सपेंशन अलाउंस, क्योंकि वेल्डिंग करने के बाद जब हमारा वर्क पीस कूल होगा तो थोड़ी सी वेल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी और एक्सपेंशन होगी. ओके ना. जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क पीस क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, फैलेगा और ठंडा होने के बाद सिकुड़ेगा. ओके, कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो इसके लिए हम कुछ अलाउंस रखते हैं, एक्सपेंशन अलाउंस भी रखते हैं. स्पेसिंग यानी कि प्रॉपर होनी चाहिए जिन एजेस को आपने वेल्ड करना है. सो इट मीन्स वी हैव टू मेंटेन करेक्ट रूट गैप, बोलते हैं इसको, करेक्ट रूट गैप ड्यूरिंग वेल्डिंग.
नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं प्रिपरेशन में, वेल्डिंग लीड्स जो है, एक वेल्डिंग लीड जो है पावर सप्लाई पावर सोर्स से कनेक्ट की जाती है और एक वर्क पीस से कनेक्ट की जाती है, जैसा कि हमारे ऊपर डायग्राम देख रहे हैं। और प्रॉपर वेल्डिंग करंट सेटअप किया जाता है, पावर सोर्स के द्वारा स्विच ऑन करते हैं, एंड इलेक्ट्रोड इज ग्रिप्ड इन द इलेक्ट्रोड होल्डर एंड द एज वेल एज द ऑपरेटर इज वेल्डिंग ऑपरेटर इज रेडी फॉर वेल्डिंग। उसने भी प्रॉपरली मास्क डाला हुआ है, एप्रन डाला हुआ है, गोगल्स डाले हुए हैं, ओके, लेदर ग्लव्स डाले हुए हैं, प्रॉपरली रेडी है वेल्डिंग करने के लिए। तो अब पावर वेल्डिंग पीस को रेडी कर लिया, क्लीन कर लिया, पोजीशन कर लिया, गैप मेंटेन कर लिया, करंट को ऑन कर दिया, वेल्डिंग ऑपरेटर रेडी है। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि आर्क को स्टार्ट करना है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्क को स्टार्ट करने के लिए वी जस्ट टेक द इलेक्ट्रोड होल्डर इन द राइट हैंड ऑफ द वेल्डिंग ऑपरेटर एंड जस्ट स्ट्राइक द इलेक्ट्रोड ऑन सम रफ सरफेस। डायरेक्टली हम वर्क पीस के ऊपर नहीं करते स्टार्ट आर्क को, पहले किसी रफ सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोड को चला के देखते हैं, ओके। जैसे माचिस की तीली को हम बार बार ऐसे स्क्रैच करते हैं, सिर्फ सेम इन द सिमिलर वे वी स्ट्राइक द आवर इलेक्ट्रोड ऑन द सम रफ सरफेस फर्स्ट, एंड जब स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद हम एक्चुअल वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक डेफिनेशन आएगी कि बेस मेटल किसे बोलते हैं या पेरेंट मेटल किसे बोलते हैं। तो बेस मेटल वो होता है जिसकी हम वेल्डिंग कर रहे हैं, जिसको हम वेल्डिंग करना चाहते हैं। द मेटल ऑफ द वर्क पीस इज टू बी वेल्डेड इज कॉल्ड बेस मेटल। ये भी एक डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। नाउ ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ एजेस एंड वर्क पीस। नाउ सेकंड स्टेप आता है स्ट्राइकिंग द आर्क, ये वाला, ओके, स्ट्राइकिंग द आर्क। अब हम स्ट्राइक करने के लिए क्या करते हैं, मैंने कहा कि रफ सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोड को स्ट्राइक करके आर्क को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा होगा, अगर हम वेल्डिंग वर्कशॉप में या मार्केट में या किसी इंडस्ट्री में अगर आपने देखा हो तो प्रॉपर गैप मेंटेन किया जाता है, इलेक्ट्रोड टिप और वर्क पीस के बीच में 2 से 4 mm का गैप मेंटेन किया जाता है, ओके। तो ये भी एक क्वेश्चन है, 2 से 4 mm। तो हमारी जो हम अब हीट सोर्स जो है हमारा, हम करंट यूज़ कर रहे हैं, तो करंट हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो हम 2 सोर्स से यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। यू नो दैट अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है एसी सप्लाई जो हमारे घरों में भी आ रही है 220 वोल्ट, वेल्डिंग के लिए हमें चाहिए 80 से 100 वोल्ट चाहिए एसी के लिए। अगर हमारा वेल्डिंग वाला सेटअप डीसी वाला है, डीसी सोर्स यूज़ कर रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कम वोल्टेज चाहिए, 60 to 80 वोल्ट फॉर स्ट्राइकिंग द आर्क। इसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं कि वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हमारी जो वेल्डिंग मशीन है इस वोल्टेज पे सेट करी जाती है। इन केस ऑफ एसी इट इज सेट टू 80 to 100 वोल्ट एंड इन केस ऑफ डीसी इट इज 60 to 80 वोल्ट। बट जब हमारी आर्क इलेक्ट्रिक आर्क स्टार्ट हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, मेंटेन करने के लिए हमें इससे ऑलमोस्ट हाफ द वोल्टेज चाहिए, ओपन सर्किट वोल्टेज। एसी के केस में हमें 15 से 30 वोल्ट चाहिए आर्क को स्टेबल आर्क मेंटेन करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, और इन केस ऑफ ए डीसी इट इज 30 to 35 वोल्ट, ओके। तब स्ट्राइक करने के भी, इलेक्ट्रिक स्ट्राइक करने के, आर्क को स्ट्राइक करने के भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक तो मैंने कहा कि स्क्रैचिंग मेथड, की जैसे आप माचिस की तीली से आग लगाते हैं, स्क्रैच करते हैं मैच बॉक्स के ऊपर, एक तो ये तरीका है। तो हम रफ सरफेस के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रोड को स्क्रैच करके देखते हैं। सेकंड मेथड है कि हम इलेक्ट्रोड को स्ट्रेट वार्ड, अपवार्ड एंड डाउनवार्ड किसी रफ सरफेस के ऊपर और चला के देखते हैं ऐसे, ताकि हमारी प्रॉपर गैप मेंटेन हो जाए और हमारी इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्राइक हो जाए। तो ये 2 मेथड्स हैं। तो ये हमारे पास फिगर है,
आर्क वेल्डिंग की, यू कैन सी दैट ये पेरेंट मेटल जिसको हम, या बेस मेटल जिसको वर्क पीस को हम वेल्ड करना चाहते हैं, वी नेम्ड इट एज पेरेंट मेटल. ओके, नाउ दिस वन इज द इलेक्ट्रोड जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम वेल्डिंग कर रहे हैं. तो एक पावर लीड हमने बेस मेटल को कनेक्ट की हुई है, एक इलेक्ट्रोड को. ओके, नाउ इस डायरेक्शन में हम वेल्डिंग कर रहे हैं. देखिए ये इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रोड चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड होगा. ओके, एंड दिस वन देखिए डेप्थ ऑफ फ्यूजन, डेप्थ ऑफ फ्यूजन लिखा हुआ है. ओके, कि इतनी डेप्थ तक हमारा इलेक्ट्रोड स्ट्राइक कर रहा है, उसकी हीट स्ट्राइक कर रही है. और ये वाला हमारा दिखाया हुआ है डिजायर्ड डिपॉजिटेड मेटल, कि इतना मेटल इलेक्ट्रोड और वर्क से मेल्ट होकर वर्क पीस के ऊपर जम गया है, ये वाला. ओके, इस डेप्थ तक. एंड दिस वन मोर थिंग इज देयर, आर्क लेंथ, ये वाला आर्क लेंथ. आर्क लेंथ की, एक आर्क की लेंथ कितनी है, अभी इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे. व्हाट इज आर्क लेंथ? इट इज द distance between the end of the electrode and the surface upon which molten matter is deposited. कि वर्क सरफेस के टॉप से और इलेक्ट्रोड के टिप के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ, इफ द आर्क इज मेंटेन्ड. और इसकी जो लेंथ है वो हमारी किस पे डिपेंड करेगी? नो डाउट इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रोड का साइज क्या है, इलेक्ट्रोड किस तरह का है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, कितनी हीट दे रहे हैं, एंड द मटेरियल टू बी वेल्डेड, कौन से मेटल को वेल्ड कर रहे हैं. नाउ वन मोर थिंग इज देयर, दैट क्रिएटर. नाउ इट इज बेसिकली आर्क क्रिएटर होता है कि एक कैविटी सी बन जाती है जहाँ पर हमारी आर्क स्ट्राइक करती है वर्क पीस के ऊपर, वहाँ पर एक डिप्रेशन या कैविटी बन जाना वेल्डिंग करने के बाद भी, तो ये हम इसको डिफेक्ट बोलते हैं. तो इसकी डेफिनेशन हमारी ये है, ए स्मॉल डिप्रेशन फॉर्म्ड मेड इन द पेरेंट मेटल ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क अराउंड विच द मोल्टन मेटल इज पाइल्ड अप, इकट्ठा हो जाता है, इज नोन एज ए आर्क क्रिएटर. सो दिस इज आर्क क्रिएटर. ओके, अगर ये वेल्डिंग करने के बाद भी हमारा ऐसा डिप्रेशन रहता है, देन इट इज नोन एज ए डिफेक्ट. ओके, और ये जनरली तब क्रिएट होता है जब हमारी आर्क बार बार ब्रोकन होती है, कॉन्टिन्यूस आर्क नहीं है. तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये हमारा डिफेक्ट ना प्रोड्यूस हो, हमारी आर्क कॉन्टिन्यूसली मेंटेन्ड रहे. ओके, नाउ